Let us see. We were discussing about the computer database are working with table using the MS Access, and it is a very important point that the best example of database is our telephone directory, where our name and numbers should be arranged in a particular order, either ascending or descending. We have to use the following points, mainly adding records, deleting records, searching records. I have already explained it in your previous classes. ITC वाला सामान हो गया। That what is database and how can you may create on your computer. What is database and how can you can create on your computer. First of all, let us see. Here is the network problem. Due to network problem, you are disconnected nowadays. Let us see. Database is an organized collection of related information. Always remember that database is an organized collection of related information. आंकड़ों का व्यवस्थित स्वरूप कह सकते हैं. जल्दी तो बात कर. You can sort your records. We can edit your records. You can search your records using a complete database file. Here, using the MS Access, I have already discussed about this. MS Office contains 4 packages. First, MS Word, MS Excel, PowerPoint, and next is MS Access. MS Access. Then you have to read about the MS Access. And first of all, using the MS Access, you have to learn that how can you create a database file. It is a very important point that using the MS Access, what is the procedure to create a database file? How can you add records? What is method by which you can search records? Then, first of all, let us see about the database. Database is an organized collection of related information by which you can store your information in the form of records. You can search, you can edit, you can delete these records. And next question is, what is file? A file is collection of related records. A file is a collection of related records. File content records. And what is records? Record is a collection of combined field. Record is a collection of fields. Record collection of fields makes one record. कल हमने बताया था आपको, हिंदी में भी समझिए.
लेकिन लैंग्वेज जो आपकी है वो इंग्लिश होनी चाहिए, अप टू द पॉइंट। ये समझने के तौर पे हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर पाते हैं। व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड। एंड व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ meaningful information by which you can identify your specific fields like name, address, mobile number, admission number. These are the fields. इस बात को बखूबी समझ लीजिए भाई, क्योंकि यही बेस है। जैसे कोई मकान का आधार जो नींव होती है ना, यही एक बेस है। किस चीज के कलेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल। जैसे मान लो एक डेटाबेस फाइल बना दिया है आपके नाम से, किसी के नाम से बना दिया है, और उस फाइल में इतने सारे फील्ड हैं, जैसे मान लो नेम है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर है। मान के चलिए हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, नेम और मोबाइल नंबर। आपके फोन बुक का ही ले रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ डेटाबेस। तो अगर आपके फोन बुक में 300 या 500 नाम और नंबर हैं, इसे यूं समझिए, तो कंप्यूटर की टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड की संख्या कितनी है? 300 और 400। अब उसमें से 400 डेटाबेस में 400 फोन बुक में नाम और नंबर हैं। हम कहें कि रवि का जो नाम है या जो नंबर है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको सर्च करिए। तो आप इसके लिए क्या करते हो? फोन बुक में जाते हो, सर्च करते हो, RAV जैसे टाइप करते हो, वो चला आता है नाम, और उससे रिलेटेड नंबर भी आप वहाँ पे देख सकते हो। Then your 400 or 500 records are there in the form of a database file, by which you can search your specific single record from this special database file. Is it clear? Then MSSS has facility to search any type of records. Then रिकॉर्ड अब किसे कहोगे? कई सारे फील्ड मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे आपके क्लास में, क्लास 8 में जितने भी सेक्शन हैं, उन हर सेक्शंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। और जो भी इसमें फील्ड बन रहा है, जैसे आपका एडमिशन नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, इट इज द व्हाट? फील्ड्स नेम। You can delete or you can insert new fields using the MSSS. MSSS में ये विशेषता होती है कि हम किसी भी नए फील्ड को जोड़ सकते हैं या पहले से बनाए गए फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड का। फील्ड किसे कहेंगे? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, जैसे नेम है। अब इसी नेम को अगर हम पलट के लिख दें AMEN, तो ये तो कुछ भी नहीं है ऐसे, मान लो। देन फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स which consist of meaningful information. You can summarize with the help of meaningful information. And file is a collection of related records. File contain many more records, many more related records. Using the advanced feature of MSSS, you can add or remove any type of fields. You can also add or you can delete a number of records using the MSSS package. Is it clear? Tell me about this. Any problem using the concept of file, fields and records? Have you any problem? No, sir. No, sir. Yes, sir. Let us see.
No, Then sir. Microsoft SS is the most popular and powerful RDBMS, Relational Database Management System. इसको हम DBMS भी कहते हैं, DBMS. धीरे धीरे पढ़ो लेकिन पूरा कंप्लीट जानो. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पेन पेंसिल होगा आप तो नोट करते चलिए. DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नोट डाउन करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है. Then MS Office suite applications it used to organize and manipulate data relationship between these tables using the common fields. You can also combine two or more fields according to your requirement. Then Microsoft SAP is the best example, best relational database management system by which we can edit, we can add, we can delete records. Is it clear? आगे इसमें देख लें. यूजिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL भी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. कई सारा अलग अलग भी पैकेजेस हैं जिससे कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं. अब यहाँ पे देखें, ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस. एक फ्लैट फाइल डेटाबेस है और एक रिलेशनल डेटाबेस है. फ्लैट फाइल, Good condition. फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस A flat file database can store and retrieve information. It is not capable of linking files together. ये जो फ्लैट फाइल डेटाबेस होगा ये एक दूसरे डेटाबेस से लिंक नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक सिंपल डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स रख सकते हैं. It is not capable of linking the files together. But relational database links separate tables together to get and common piece of information. इसे हम लिंक करा सकते हैं. जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो इसको. जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. मान लो कोई कंपनी है जहाँ पे 750 या 800 एम्प्लॉइज हैं. 800 कर्मचारी किसी संस्था में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं. तो कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज का, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सभी का जो इंफॉर्मेशन है एक डेटाबेस में स्टोर किए हुए हैं. उसमें मान लो एम्प्लॉय कोड हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, डेजिग्नेशन पद होगा, फील्ड्स का नाम होगा, ये डेजिग्नेशन, परमानेंट एड्रेस, दीज आर द फील्ड्स, सैलरी होगा. ये सारी चीजें आप जनरल तौर पे जान सकते हो. मान लो कंपनी का जो HR है उसको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी कुछ कंडीशन के आधार पर. एम्प्लॉय के लिए अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से उसने बोला कि चलो भाई, जिसका सैलरी 40,000 यानी 40,000 से ज़्यादा है उसकी लिस्ट हमें दो. तो कंपनी में जो कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो क्या करेंगे, सीधे तौर पे उसका डेटाबेस ओपन करेंगे कंपनी का, और उसमें से 800 कर्मचारियों में से सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड्स लिस्ट करेंगे, सर्च करेंगे जिनका सैलरी कितना होगा, 40,000 होगा या 40,000 से ज़्यादा होगा. मान के चलो हो सकता है उसको दीपावली पे या कुछ इस तरह के स्पेशल ऑफर देना हो, या उस तरह के कोई स्कीम हो जिससे कि वो जानना चाहता हो कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है.
तो इन दिस कंडीशन क्या करेगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर, रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, उसको कहते हैं फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर ऑपरेटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, इस व्यवस्था को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं, क्या करेगा वो एम्प्लॉइज की डिटेल्स निकालेगा, उसमें से फिल्टर एक ऑप्शन या फिल्टर करके उन सभी एम्प्लॉइज की लिस्ट को एक जगह करेगा जहां पर जिनकी सैलरी कितनी है 40,000 या 40,000 से ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसमें कितने डेटाबेस हो गए, एक तो मेन डेटाबेस रहेगा जिसमें 850 या 800 कर्मचारी हैं, और एक और फिल्टर करके डेटाबेस बन जाएगा जिसमें मान के चलो 200 कर्मचारी हो जाएंगे या 150 कर्मचारी हो जाएंगे। तो ये दो डेटाबेस होगी और दोनों डेटाबेस एक दूसरे से क्या होगी, लिंक होगी। अगर मान लो 5% उसको या 10% दिवाली पे ऑफर देना हो जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा हो, तो हम एक अपडेट करके उन सभी एम्प्लॉइज की सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जरूरत आती है, हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी जरूरत आती है। जैसे मान लो कोई सिम एक्टिवेशन कंपनी है, आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है, तरह तरह की कंपनी है, आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं इसके बारे में। तो सपोज दैट एक हफ्ते के अंदर रिलायंस जियो के कितने सिम बिके या कितने यूजर्स हम बनाए, अगर हमें डेट वाइज डेटाबेस सर्च करें तो ये आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक डेट में कितने कितने यूजर्स हमारे पास जुड़े। आज जैसे मान लो 31 जुलाई है, हम चाहते हैं कि 20 जुलाई को देखें कि जियो के कितने यूजर्स जुड़ पाए, लेकिन ये जो ऑथराइजेशन होता है किसके पास होगा, कंपनी के पास होगा। ये डाटा सार्वजनिक नहीं होगा, लेकिन कंपनी अपने पास इस व्यवस्था को किसके तहत स्टोर करके रखती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। डीबीएमएस है एग्जांपल। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को देख करके ये बिल्कुल स्पष्ट लग जा रहा है कि आप कितने सीरियस हो। नाम क्या लें हम? नाम तो ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नाम लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। आपके दिल दिमाग में इस चीजों के प्रति कितना भाव है? कुछ बच्चे तो बिल्कुल वो हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं, लेकिन कई लोग एकदम इतनी लापरवाही। अब नाम लेना उचित नहीं है यहाँ पे, आपका हम वीडियो भी देख करके बता सकते हैं, लेकिन आप खुद भी जाने कि इतनी मेहनत इन चीजों के प्रति हम कर रहे हैं ताकि आप समझ पाओ, और आप ठाट लगाए बैठे हो। ठाट से पढ़ाई नहीं होती है। विद्यार्थिनम कुतः सुख, सुखर्थिनो कुतो विद्या। सुख चाहने वाले के पास विद्या नहीं। आराम से पढ़ाई ठाट से नहीं होती है बेटा। आप समझ सकते हो कि आपके पेरेंट, आपके गार्जियन, आपने कहा ये खरीद दीजिए, मोबाइल खरीद दीजिए, ये वाला मोबाइल ठीक नहीं है, दूसरा वाला मोबाइल ये महंगा वाला खरीदिए जो 15-16 हज़ार का है। एक अच्छा खासा रकम आपके पेरेंट ने आपको अफोर्ड किया है, और जो भी आपके लिए बनता है, जो भी आप कहते हो ये शर्ट खरीदना है, ये पैंट खरीदना है, वो सब लोग दे रहे हैं। काहे लिए? कि आप पढ़ाई के प्रति आपके अंदर जो है एक अलग स्वभाव हो जाए। अगर आपके पास जुनून हो जाता है ना, जैसे मान लो ठीक है लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग, आप घर पे हो और इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कितने आप ही में से इतना बढ़िया काम इसमें कर रहे हैं कि इस माध्यम से पढ़ाई में एकदम अच्छा काम हो रहा है, अच्छा कर भी रहे हैं। और कई लोग इस व्यवस्था के ऊपर दोषारोपण भी कर रहे हैं। छिद्रान्वेषण जिसका भाव कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो अपने माइंड को और अपने विचारों को शुद्ध करके, और भाव ये रखिए कि आप
कर सके। हम तो हमेशा आपको क्लास में भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे कि इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ये कहीं एक मजदूर जो दिन भर खेतों पे काम कर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा प्रयास आपको ये पढ़ाई में करना होता है। तपस्या है, एक ठाट से नहीं होता है। सन्यासी की, एक साधु सन्यासी की तरह से ये लाइफ होती है। आज तक नहीं हुआ है। देखें, तो डेटाबेस का पहले तो ओवरव्यू समझिए कि डेटाबेस से हम कैसे कैसे अपने दैनिक दिनचर्या में नाउअडेज वर्तमान समय में डेटाबेस का क्या एप्लीकेशन है, कैसे अनुप्रयोग है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा सार्वजनिक नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, ये डेटा कौन अथॉरिटी रखता है? जो जिस कंपनी का हेड है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये डेटा है। अभी नहीं कि आप मांग लीजिए कि चलो 20 तारीख में कितने यूजर जियो में हुए हैं उसकी लिस्ट जरा दे दो, नहीं देगा। अपने सुप्रीम अथॉरिटी को दे सकता है। वोडाफोन है या जो भी एयरटेल कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल में मान लो कल की तारीख में कितने सिम चालू हुए हैं, कल की तारीख में बिहार या यूपी में कितने सिम, किसी खास जिले के अंदर भी अगर हम चाहें बेटा सर्च करना तो सर्च कर सकते हैं। तो कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये डीबीएमएस पैकेज ना हो तो शायद ये काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Then, Yes, sir. Yes, sir. okay. Yes, sir. Yes, sir. Then these are the flat file. Yes, and these are sir. the relational. तो मम्मी एक दादा का लुंगी हटा। these are the relational. तो रिलेशनल में हम क्या देख सकते हैं? एक दूसरे से लिंक होता है, एक दूसरे से संबंध हो जाता है, इस्टेब्लिश होता है। जैसे मान लो हमने अगर 10% उसका सैलरी में इंक्रीमेंट दिया, या ऐसे एम्प्लॉइज की लिस्ट देंगे जिसकी सैलरी 20,000 से कम है, जिसकी सैलरी 15,000 से कम है। दीज आर द कंडीशन बाय विच वी कैन अप्लाई। तो यहाँ पे सिंपल सा डाटाबेस बनाने के लिए पहले देखा जाएगा कैसे बनता है, उसके फील्ड्स नेम क्या हो सकते हैं। दीज आर द फील्ड्स नेम बाय विच वी कैन क्रिएट द मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेस एंड देयर हैव मेनी फीचर्स। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसएस की फीचर्स देखा जाए, क्या फीचर्स हैं वहाँ पे। एसएस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज information into small parts so that it is easy to access the information. छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन ये डिवाइड कर देता है, बांट देता है। जैसे मान लो 1 से 10 के बीच रिकॉर्ड्स, 21 to 30 ऐसे, या एज के हिसाब से भी हम इसमें डिवाइडेशन कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड। बना भी सकते हैं, एक अपने पास मेन डेटाबेस की द्वितीय प्रति रख सकते हैं कि हमारे पास अगर मान लो कंप्यूटर में ये रिमूव भी हो जाती है तब भी हमारे पास ये पड़ी रहेगी। एसएस फैसिलिट शेयरिंग ऑफ डेटा, डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। शेयरिंग ऑफ डेटा, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारा कंप्यूटर वैन से जुड़ा हुआ है तो MSSS की फाइलों के अंदर जो भी टेबल में रिकॉर्ड्स होंगे उस रिकॉर्ड को दूसरे कंप्यूटर से भी हम शेयर कर सकें। दीज आर द शेयरिंग। डेटा सिक्योरिटी फीचर एंड मेंटेन इंटीग्रिटी विच इज यूजफुल टू मेक आवर डेटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये, आप इसको MS एक्सेल में भी कर सकते हो। अगर हम किसी स्पेसिफिक अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर दें, सुरक्षित करके रख दें, तो हमें अनऑथराइज्ड पर्सन्स, जैसे मान लो आपके पास लैपटॉप हो घर पे, आपके पास स्मार्टफोन है, तो लॉक पैटर्न आप लगा देते हैं, कोई नंबर होता है, फेस कोड होता है, या फिर जिगजैग करके कोई पैटर्न लगा देते हैं।
तो अनऑथराइज पर्सन यानी अनाधिकृत व्यक्ति उस फोन का यूज नहीं कर पाएंगे, जिसको पैटर्न पता होगा वही कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लगा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक फाइल को हम ये ऐसे कर सकते हैं कि वो फाइलों को रीड कोई अनऑथराइज पर्सन न कर। MS एक्सेल में भी आप शीट को प्रोटेक्ट कर दोगे तो एक तो ये होता है कि फाइलों को देख पाएगा, यानी एंटायर स्क्रीन को देखेगा, रिकॉर्ड्स पढ़ लेगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी पढ़ सकता है। लेकिन कोई अनऑथराइज यूजर्स अगर उसमें कोई परिवर्तन करना चाहेगा तो उसे चेंज वो नहीं कर सकता है। जो भी करने की कोशिश करेगा वो पासवर्ड पूछेगा। और जब शीट को प्रोटेक्ट किया गया है तो उस समय क्या करते हैं, उसी समय उस पैटर्न को हम उस स्पेसिफिक नंबर को वहाँ पे दे देना होता है। अगर हम उसको प्रोटेक्ट किए हैं, मान लो कोई कोड से या कोई नेम से, जैसे मान लो तो नाम वो जो हम प्रोटेक्ट करते समय दिए हैं उस नाम को कंप्यूटर हमसे पहले पूछेगा, एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। तो जो जानकारी है वही चेंज कर पाएगा, नहीं तो अनाधिकृत व्यक्ति उसको परिवर्तित नहीं कर पाएगा। यही बात है। SS provide the facility to create data forms so that the users can enter the required information to the respective fields. एक फॉर्म है रिकॉर्ड को जोड़ने का। तो रिकॉर्ड को जैसे मान लो 20 रिकॉर्ड पहले से है, 21st अगर एक रिकॉर्ड और जोड़ना है तो वो 21st पे जाएगा, 21वें पे जाएगा। तो हम इसको दो तरीके से जोड़ेंगे, या तो एक टेबल के सबसे डाउनवर्ड पोजीशन में नीचे की तरफ, और नहीं तो एक फॉर्म आता है, फॉर्म ले लेंगे ऑप्शन। तो फॉर्म में जितने भी फील्ड्स हैं, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीजें हम टॉप टू बॉटम ऑर्डर में भरते जाएंगे। एंटर करने के वो अपने आप डेटाबेस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला भी स्टेप हमें ये सीखना है कि फील्ड का मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होगा, फाइल का मतलब क्या होगा, व्हाट इज फाइल, व्हाट इज डेटाबेस। अब इस SS के जरिए हम रिपोर्ट बना सकते हैं, रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब अरेंजिंग द डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, either ascending or descending, it is known as sorting record. आगे इसके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले जान लीजिए सॉर्ट और इंडेक्स, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। जितना बताया जाए उतना कम से कम क्लियर रखिए, क्योंकि क्लास 6-7 में नहीं आया, आप धीरे धीरे क्लास 8 में इसके स्टैंडर्ड के बेस पे आप जानकारी रखें, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में हम बता पाएं। सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स, कहीं कहीं पे इंडेक्स भी होगा, इंडेक्सिंग, INDEX। सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग both are process by which any users can arrange the records in a particular order, either ascending or descending. ये दोनों रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम अपने डेटाबेस के अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस, आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। ब्लैंक डाटाबेस कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग ए डाटाबेस। देखो पहले दूसरा देखो, क्रिएट डाटाबेस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डेटाबेस बनाने से पहले, ठीक है, डेटाबेस बनाने से पहले हमें इसके फील्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेट अस सी, इसके फील्ड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस तरह का फील्ड ये है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, मान लो अलग अलग डाटाबेस का अलग अलग फील्ड होगा। जैसे आपके स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर है, कहाँ आपका एड्रेस है, क्या आपका एडमिशन नंबर है, तो
तो अगर हम यहीं की बात करें, आपके स्कूल की बात करें, तो हर स्टूडेंट के पास एक क्या है, एडमिशन नंबर है ना, एडमिशन नंबर। इसके बाद आपका नेम आता है, नेम, फिर फादर्स नेम, इतना इतना, these are the fields name, एडमिशन नंबर, नेम, एफ नेम, एफ नेम यानी फादर्स नेम। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने से पहले आपके पास ये एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम जो डाटाबेस बनाने जा रहे हैं उस डाटाबेस में किस तरह का फील्ड होना चाहिए, which type of fields you have, that you have to use this specific field using in your database file. Then first of all you need to load the MSSS, by which स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रो, अब ये लिख नहीं रहे हैं आपको, हम बता दे रहे हैं ओरली ऐसे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, MS ऑफिस लेंगे, MS ऑफिस, यूजिंग द MS ऑफिस you have to select the MSSS options. Is it clear? Using the MS office you can select MSSS, and when you select MSSS entire window you can see on your entire screen. Then first of all, to create a new database or new table, first of all you need to create table or create blank database. क्या ऑप्शंस लेंगे क्रिएट करने के लिए? क्रिएट डाटाबेस और ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक यानी खाली। जब ये डाटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे तो बाद में भी नाम दे सकते हैं या पहले भी क्रिएट करने के टाइम एक इंटायर बॉक्स होगा ब्लैंक डाटाबेस में, उसका नाम टाइप करेंगे, जब एंटर करेंगे तो आप उसी नाम से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो भी फील्ड्स आप चाहते हैं, जो भी फील्ड्स आपको उस डेटाबेस में देना हो उसे टाइप करते जाएंगे, जैसे एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम। किसी ने कहा कि नहीं, ये फादर्स नेम की जगह पे अगर हम एड्रेस रख लें तो आप रख सकते हो, एड्रेस रख लो। तो किसी भी फील्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है और किसी भी पहले से बने फील्ड को, मान लो यहाँ पे हमने इतने फील्ड्स क्रिएट किए और इसमें 20 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, रिकॉर्ड्स। यस बोलो नहीं, अगर ध्यान दूसरी तरफ जाएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। कई सारे बच्चे जो कि सुन रहे हैं और कई सारे एंजॉय भी कर रहे हैं। नाम तो थोड़ा सा लेने में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, और एक सुप्रीम अथॉरिटी जो है हमारे इस चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रही है कि आप में से कौन बोल रहा है। यहाँ से डाटा को देखा जा रहा है। It is also you can say that in other word we can observe, we can trace out. It is a general view. It can be possible. तो अब ऐसे लोगों को अगर रिट्राइव करके उसे रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर हम तो उस ग्रुप से बाहर हो गए हैं, जरा सा हमको कैसे ऐड किया जाएगा। तो इसके पहले आपको बता दूं कि आप साइलेंट होकर के देखें। हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स हो गए बेटा। मान लो एक हमने
डेटाबेस बना दिया जो मान लो आपके अपने अपने नाम से हो गया, सेल्फ नेम। इसके अंदर फील्ड हो गए एडमिशन नंबर, नेम और एड्रेस, 3 फील्ड हो गए। इसके अंदर 20 लोगों के रिकॉर्ड्स हम ऐड कर दिए। सपोज दैट डमी हो जो भी है, आप इसके अंदर 20 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। तो ये रिकॉर्ड्स कहाँ पे दिखाई देगा? टेबल के अंदर। एक डेटाबेस फाइल में कई सारा टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुन लो फिर से एक बार ध्यान से। एक डेटाबेस फाइल के अंदर हम कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे टेबल बना सकते हैं। तो ये 20 रिकॉर्ड्स बनाने के बाद मान लो अब हम आपको लेके चल रहे हैं सर्चिंग और फिल्टरिंग पे। FILT, फिल्टर कैसे करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि सर 20 रिकॉर्ड्स हैं, या मान लो थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 20 रिकॉर्ड में तो आप आंख से देख के भी बता सकते हो कि ये लड़का या स्पेसिफिक एडमिशन नंबर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अगर आपके पास 500 रिकॉर्ड्स हैं, 500, और उसमें हम स्पेसिफिक किसी लोकेशंस की बात करें कि जैसे बलिया से क्लास 8 में कितने लोग बलिया से आ रहे हैं, कितने लोग रसना से आ रहे हैं, तो इन दिस कंडीशंस क्या करना होगा आपको? एड्रेस वाले फील्ड पे क्या ले लोगे? फिल्टर। उसके अंदर हम फिल्टर कर लेंगे। अब एड्रेस में बलिया, रसड़ा, मऊ जो भी पता दिया गया होगा, उसमें से सिर्फ उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड्स हम सर्च करके एक कमांड में लेंगे जिनका एड्रेस क्या होगा? बलिया होगा। बाकी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में पड़ा होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन हमें 500 रिकॉर्ड्स में से अगर हमें मैनुअल खोजने के लिए कह दिया जाए तो हम तो खोजते रह जाएंगे। लेकिन ये काम अगर हमें कंप्यूटर से SS के थ्रू करना होगा तो हम एक क्लिक में कर सकते हैं। दीज आर द वेरिएशन। आपके पास 1 मिनट है, तो इस लेसन